student. This is Anju Mehta. We are taking a first chapter of business study of 11th class, that is evolution and fundamental of business. In the first part, we discuss about the human activity and their classification. After that, we discuss about the economic activity and their classification and their difference. So in second part, we are containing concept of business, character sketch of business, role of business, objective of business, economic objective of business, and social objective of business. In this part, we discuss all these content. Let's start with what's first slide, that is the concept of business. Concept means definition, the meaning. As you know, the business is an activity which involves manufacturing, production, sale and purchase of goods and services with the motive of earning profit to satisfy the human needs of the society. इज इट क्लियर? बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम कुछ क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेडिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज करते हैं ताकि सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सकें. लेट्स स्टार्ट विद द करेक्टर स्केच ऑफ द बिजनेस. करेक्टर स्केच को हम फीचर्स ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं और एलिमेंट ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर करेक्टर स्केच, दैट इज कॉल्ड द an economic activity. Business is an economic activity. As you know that business, the main purpose of the business is to earn profit, and profit is always measured in the term of money. So it is an economic activity. Too easy. Go to the next feature, that is production and procurement of goods and services. Business involve all the activities which concern with the production and procurement of goods and services with the help of different type of facilities or different type of services. We can convert the raw material into a finished product and sell to for the people's utility. Okay, go to the next slide, that is also continue this topic. In the third feature, we take sale and exchange of goods and services. Means all the business activity also involves sales and exchange of goods and services, in which goods and services are sold to the peoples on behalf of earning money. Next one is the dealing of goods and services at regular basis. As you know, all the business activities are done on a regular basis. One time transaction is not a business. इज़ इट क्लियर? आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मदर है वो न्यूज़पेपर बेचती है महीने में एक बार, पुराना न्यूज़पेपर जिसको हम स्क्रैप न्यूज़पेपर कहते हैं, उसको महीने में एक बार बेचती है और उससे पैसे बनाती है, उनको प्रॉफिट होता है, पर वो बिज़नेस नहीं कहलाया जाएगा. हालांकि प्रॉफिट हुआ है तो भी नहीं, क्योंकि ये उनकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है. और आपके घरों के आसपास जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, चाहे छोटी फैक्ट्रीज हो बड़ी फैक्ट्री हो, आप देखिए रेगुलर खुलती हैं, रेगुलर काम होता है एक ही तरीके का, और रेगुलर वो एक तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द बिजनेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट अर्निंग. द मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. It is very necessary for the business to survive in the market, so they must have to earn the profit. Next feature is uncertainty of return. We always know that there is an uncertainty of returns in the business. No businessman can say that whatever he earned today surely earn tomorrow also. ऐसा नहीं कह सकते. जो अर्निंग आज हमारी है वो हम ये श्योर होकर नहीं कह सकते कि वही कल होगी, वही परसों होगी और वो फ्यूचर में होगी. तो जब हमारी इनकम ही अनसर्टेन है, उसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न है वो सेम होगा. इज इट क्लियर? और यही अनसर्टेनिटी नेक्स्ट फीचर को जन्म देती है, और वो क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क. यही अनसर्टेनिटी जो है वो जोखिम को उत्पन्न करती है, और यही कहलाता है एलिमेंट ऑफ रिस्क. दैट इज़ अनदर फीचर ऑफ द बिजनेस. मीन्स बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहता है. नो वन से दैट कि भी रिस्क नहीं होगा, या वी कैन एलिमिनेट द रिस्क. ना, हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते रिस्क को, हम कम कर सकते हैं. वी कैन मिनिमाइज द रिस्क बट कांट बी एलिमिनेटेड. इज इट क्लियर? चलिए, रिस्क कई तरह के हो सकते हैं. आप जान सकते हैं, हो सकता है आपका वर्कर स्ट्राइक कर दे, चोरी हो जाए, आग लग जाए, यहाँ पे फिर आपका कस्टमर का हैबिट चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए. ये सब भी चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, और अगर ये हमारे बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट करती हैं तो ये कहलाएगा रिस्क. इज इट क्लियर? चलिए, ये इसके साथ ही हमारे फीचर्स बेटा ख़त्म हो जाते हैं. अगला हम करते हैं
that is role of profit in a business. Is it clear? रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस के मी का मतलब होता है कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में. एज यू नो कि प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में. प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता. तो देखिए पहला रोल यही है कि फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, इफ द बिजनेस वांट टू सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन in competitive market, today's market, it is necessary they earn maximum to maximum revenue. इज इट क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी करे, इनकम उत्पन्न करे, चाहे वो अपनी सेल बढ़ाए चाहे जैसे भी करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करनी पड़ेगी. ठीक है, तभी वो लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकता है. फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपका बिजनेस अच्छे से रिवेन्यू ले रहा है तभी वो लंबे समय तक ग्रो और एक्सपेंशन कर सकता है. आप देखिए जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं दे कैन एक्सपैंड, दे कैन ग्रो. इज इट क्लियर? और जो नहीं कमा पाते वो अपने बिजनेस को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा रिस्क लॉस होता चला जाए तो वो अपने बिजनेस को समेट भी लेते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं. इज इट क्लियर? गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. ठीक है, प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है बिजनेसमैन को कि वो और ज़्यादा तन्मयता से अपने बिजनेस में काम करे, मेहनत करे. इज इट क्लियर? तभी तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो मेहनत ज़्यादा करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जितनी एफिशिएंसी वो दिखाएगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से उसको बेनिफिट होगा, उसके बिजनेस को बेनिफिट होगा. इज इट क्लियर? आगे बात समझ. प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट बोथ पार्टीज, ओनर्स एंड द वर्कर्स टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट टूवर्ड्स द बिजनेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन. ऑलवेज प्रॉफिट, always earning profit is a prestige issue for the business. It give a recognition to the business. बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अपने प्रॉफिट अर्निंग की वजह से ही जाने जाते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस. हम रिलायंस को कैसे जानते हैं? हम लोगों की निगाह में रिलायंस कैसे है? क्योंकि उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तभी तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट अर्निंग होती है वो बिजनेस को और बिजनेसमैन दोनों को रिकॉग्निशन देती है, गुडविल देती है, और साथ में उनके लिए एक प्रेस्टीज इशू बन जाती है, क्योंकि सोसाइटी उनको उनके प्रॉफिट अर्निंग से जानती है. इज इट क्लियर? चलिए, ये था हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. नेक्स्ट स्लाइड में हम करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझिए, द एंड पॉइंट, वो आखिर का पॉइंट जिसको पाने के लिए बिजनेस में बिजनेसमैन, मैनेजमेंट और सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस के हैं वो लगे होते हैं, उसी डायरेक्शन में काम करते हैं ताकि वो ये पॉइंट को पा सकें. सो समझ आ गया होगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन द वे, द डायरेक्शन टू अचीव दैट गोल. मैनेजमेंट एंड ऑल रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड दैट. इज इट क्लियर? मैनेजमेंट के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम दो पार्ट में बांधते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव. इज इट क्लियर? चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. जिसमें सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. इकोनॉमिक नाम से ही लग रहा है आपको, मनी से रिलेटेड. ऑल द ऑब्जेक्टिव विच आर बिलोंग्स टू द अर्निंग मनी केप्ट इन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा है. कौन से है? पहला सर्वाइवल. सर्वाइवल ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हर मैनेजमेंट, हर बिजनेसमैन ये इंश्योर करता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन आज की कट थ्रोट कंपटीशन में सर्वाइव करे, और इसके लिए उसको वही करना है जो मैंने पहले भी बताया है कि एनफ रेवेन्यू जनरेट करना है. इतनी कमाई करनी है कि उसका बिजनेस अच्छे से चल सके और अपने बिजनेस की जितनी भी खर्चे हैं वो निभा सके. इज इट क्लियर? दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग. हर बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट. और प्रॉफिट अर्निंग कैसे होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर दो तो जो एक्सेस अमाउंट बचता है उसको हम प्रॉफिट अर्निंग कहते हैं. इज इट क्लियर? और जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा. और नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ. हमेशा प्रॉफिट जो होता है, अच्छा प्रॉफिट जो है वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंस्पायर करता है, और बिजनेस ग्रो भी उसी के बलबूते पे करता है. अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप बिजनेस को वाइंड अप करोगे, ग्रो नहीं करोगे, एक्सपैंड नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मनी से रिलेटेड होते हैं और इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ.
सर्वाइवल में हम एनएफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्रॉफिट में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एक्सेस प्रॉफिट रेवेन्यू होगा, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टू द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है पहले तो ये समझिए। बिजनेस अपने एक सोसाइटी में रहता है और अपने आप में भी एक सोसाइटी, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग उसमें आकर मिलकर काम करते हैं, तो ये अपने आप में भी एक सोसाइटी। तो ये अपने वर्कर्स के लिए भी काम करता है। बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हैं, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो डीलर हो, उनके लिए भी काम करता है। तो उनके लिए भी अब काम करता है। सोसाइटी के लिए तो ये काम करेगा ही करेगा, क्योंकि सोसाइटी के लिए ही तो ये चल रहा है। जितना भी बिजनेस माल प्रोड्यूस करता है वो कहाँ बिकता है? सोसाइटी में। कंज्यूमर ही तो खरीदेगा। मैन पावर कहाँ से आएगी? सोसाइटी से। तो किसी ने सही कहा है कि बिजनेस इज रन फॉर द सोसाइटी, थ्रू फॉर द सोसाइटी, फ्रॉम द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो इसलिए हर बिजनेसमैन के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो कौन से ऑब्जेक्टिव गेन करता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेसमैन डिफरेंट स्टेक होल्डर के लिए करता है, उसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव में रखते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी गुड एट ए सर्वाइव एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। इज इट क्लियर? हर बिजनेसमैन के का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाए और बेचे फेयर प्राइस पे, किफ़ायती कीमत पे। ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि आजकल कंज्यूमर भी अवेयर है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हुए डिफरेंट टाइप्स की जो है सिक्योरिटी मेजर्स देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक गुड लेते हैं, खरीदने जाते हैं, तो हम ISI मार्क देखते हैं। फूड आइटम जैसे आपके लेज़ हो गए, बिस्किट्स हो गए, ऐसे चिप्स वगैरह आप खरीदते हैं, चॉकलेट वगैरह खरीदते हैं, तो आप उन पैकिंग के ऊपर FPO का मार्क देखते हैं। ज्वेलरी खरीदते हैं, सिल्वर गोल्ड, तो आप हॉल मार्क खरीदते हैं, क्योंकि ये मार्क जो होते हैं वो आपको क्वालिटी और सेफ्टी का एश्योरेंस देते हैं, हाइजीनिक का इंश्योरेंस दे देते हैं। तो इसलिए हर बिजनेसमैन को की ये ड्यूटी बनती है कि वो अच्छे प्रोडक्ट बनाए, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए और फेयर प्राइसेस पे अपने कस्टमर को बेचे। इसी स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। इसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है? सोशल ऑब्जेक्टिव, वो है आपका अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हर बिजनेसमैन को ऐसी प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अडल्ट्रेशन हो गया, मीन्स मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, माल को ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, माल को दबा के रख लो और उसको सप्लाई कम कर दो और आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके हाई प्राइस पे बेचो, ओवर चार्जिंग, अंडर वेट, ये सब तरीके की कोई भी एक्टिविटी हर बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ करने के की प्रैक्टिस अगर आप चालू कर देते हो तो आपका बिजनेस ज़्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कस्टमर अवेयर है, वो वही चीज़ लेगा जो उसको फेयर प्राइस पे फेयर क्वालिटी के साथ मिल रही हो। इज इट क्लियर? तो ऑलवेज डन योर बिजनेस इन अ फेयर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिजनेस शुड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसमैन जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए सोसाइटी के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आपने एक वर्कर अपॉइंट किया, उससे 4 वर्कर का काम करा, नहीं। आप जितना हो सके कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन कीजिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें, ताकि सोसाइटी में मनी रोटेट हो सके और आपका माल भी बिकेगा उस हिसाब से। इज इट क्लियर? इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्लाइड में भी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, ये बिजनेसमैन का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश होगा तो काम अच्छा करेगा और अच्छा काम करेगा तो आउटपुट जनरेट होगी और आउटपुट जनरेट होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर? इसके लिए आपको गुड वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉय मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको फेयर वेज और सैलरी देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी देनी चाहिए, रहने के लिए घर दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। जैसे आपने यहाँ देखा होगा फोर्टिस हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में है, ये बनाया किसने था? एस्कॉर्ड ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। पर ये मतलब नहीं था कि और लोग नहीं जा रहे, और भी जा रहे हैं, पर इसके एम्प्लॉयज़ जाते थे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे फैसिलिटी मिलती थी। ठीक है, ऐसे रिसर्च सेंटर बना दो, उनका एंटरटेनमेंट क्लब्स बना दो, उनमें वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनके वेलफेयर की फैसिलिटी दे दो, किसी भी तरीके के वेलफेयर दे सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देना, मील सस्ते में दे देना। ठीक है, क्रच बच्चों के लिए बना देना,
इस तरीके की सारी फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में आती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ द कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज भी बिजनेस का मेन सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में आप रह रहे हो तो सोसाइटी की कम्युनिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी देख लो, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा है इकोनॉमी को, तो कितने सारे बिजनेसमैन जो हैं वो एफर्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं अपने महीने में से अपने प्रॉफिट का कुछ एक प्रोपोर्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी सर्विसेज तो हो गई। ऐसे आप और भी कह सकते हो, डिस्पेंसरी बना देना, हॉस्पिटल बना देना। जैसे मैंने अभी बताया था, स्कॉट का जो ने हॉस्पिटल बनाया जो आजकल फोर्टिस के नाम पे है, तो वो बनाया तो उसने भी वर्कर के लिए था। इसका ये मतलब थोड़ी कि लोग हो नहीं जाएंगे, और भी तो जा रहे हैं, तो उनको कम्युनिटी सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो, टाटा ग्रुप है, वो ऑफनेस सेंटर और ओल्ड एज सेंटर बहुत चलाता है, उनकी केयरटेकिंग करता है। रिलायंस गर्ल चाइल्ड पर उनके वेलफेयर के लिए कितने काम करता है। तो इस तरीके के सोसाइटी सर्विसेज दे के सोसाइटी को डेवलपमेंट करना है, क्योंकि जितनी सोसाइटी डेवलप होगी उतना ही आपका जो है बिजनेस भी डेवलप होगा। इज इट क्लियर बेटा? मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। ओके।